Good day students, my name is Meenakshi and welcome back to my channel. In the previous video, we have learnt about the chemical equations and chemical reactions. ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਸੌਖੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। That is how to balance a chemical equation in 5 easy steps. सो ये बहुत ही ईजी स्टैप्स ने, आओ इन्हां नूं करदे हां। आओ इन्हां नूं सिखिए। In this video we will learn about how to balance an chemical equation. इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It is very easy, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 5 ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। They are very easy steps. These are very easy steps you can say. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਫੈਰਸ, ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਰਸ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਫੈਰਸ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਯਾਨੀ Fe3O4 ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 1 ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂਕ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਣਾਂਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂਕ ਜਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਟਮਸ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨੂੰ, ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅਭਿਕਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਲਿਖ ਲਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਰਨ, ਦੈਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੈਨ ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ 1 ਐਟਮ ਸੀ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਸੀ? these are 3। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ 3 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2। ਸੋ these are balanced। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ 2 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸੇਮ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ 1, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? 1, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 4 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਪ 4 ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 4 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ step 4 start with the compound having maximum atoms।
सो कंपाउंड जिहड़ा एक जां एक तो वध एलीमेंट्स या एटम्स तो बनिया हुंदा दैट इज अ कंपाउंड। ठीक है, सो इस कंपाउंड दे विच सब तो वध एटम्स ने, यानी 3 आयरन दे एंड 4 ऑक्सीजन दे। सो की सीगा कि सब तो वध परमाणुआं वाले यौगिक तो शुरू करो। सो मैं उसनूं टिक कर लिया। ठीक है, कि ये जिहड़ा साडा कंपाउंड है, जिहड़ा साडा यौगिक है, इस दे विच सब तो वध जिहड़े एटम्स ने परमाणु हन। इहदे विच टोटल 7 जिहड़े एटम्स ने, 4 ऑक्सीजन दे एंड 3 आयरन दे। ठीक है, सो इहदे विच सब तो पहला मैं किहनूं बैलेंस किया, ऑक्सीजन नूं। स्टैप 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन बैलेंसिंग, जिथों साडी बैलेंसिंग जिहड़ी आ बैलेंस करना स्टार्ट हुंदा है। ठीक है, सो ऑक्सीजन बैलेंसिंग। सो मैं सेम फिर इक्वेशन जिहड़ी आ ओह लिख ली। देन इस साइड ते ऑक्सीजन किन्ने सी, 1। ठीक है, 1 सी। देन राइट हैंड साइड ते ऑक्सीजन किन्ने सी, 4। ठीक है, 4। देन सो जिहड़े 4 सीगे दोनां दे विच, दोनां नूं असीं जे बैलेंस करना सी तां लैफ्ट हैंड साइड नूं 4 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता। जदों मल्टीप्लाई कीता 4 into 1 is equals to 4। सो लैफ्ट हैंड साइड ते जिहड़ा कोएफिशिएंट है नाउ इट इज 4। ठीक है, ते 4 जिहड़ा वो राइट कर दिता। सो नाउ इट इज रिटन। सो साडी जिहड़ी इक्वेशन है नाउ इट इज अगेन आ पार्टली बैलेंस्ड, हाले भी फुली बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज अनबैलेंस्ड। सो नेक्स्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही स्टैप 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ही नेक्स्ट आ ਜਾਂਦਾ है बैलेंसिंग दी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ਨੂੰ बैलेंस करना। यू कैन से दिस इज दी A स्टेप और दिस इज दी B स्टेप, 5B। ठीक है, सो हाइड्रोजन ਨੂੰ बैलेंस करना है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ अगेन पहले लिख चुके हो कि हाइड्रोजन ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ 2 ने एंड राइट हैंड साइड ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਸੀ। लेकिन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ अगेन ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 into ਆਕਸੀਜਨ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ 4 2s are 8 ਬਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ these are 2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, 4 2s are 8 ਬਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹਨ ਇੱਥੇ। ठीक है, सो इनू बैलेंस करने लिए इनू भी 4 दे नाल मल्टीप्लाई करना पवेगा। दैट इज कि हुण इत्थे भी जिहड़ा कोएफिशिएंट है, जिहड़ा गुणांक है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ तुसीं देखो दोनों साइड ते जिहड़े ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन है वो पूरे बैलेंस ने। 4 2s are 8 हाइड्रोजन, 4 2s are 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन देन 4 ऑक्सीजन्स। सो बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स आर बैलेंस्ड, दोनों जिहड़े ने वो बैलेंस ने। ठीक है, संतुलित ने। स्टैप 6 जिहड़ा कि साडा मेन है आयरन, हुण ओनू बैलेंसिंग दी आयरन। ठीक है, असीं इक्वेशन जिहड़ी आ राइट कर ली है। सो साडे कोल पहला कि इधर किन्ने आ, राइट हैंड साइड ते जिहड़े साडे आयरन ने, लोहे दे किन्ने एटम्स ने, 3। ठीक है, 3 एटम्स ने इहदे ते जिहड़ा लैफ्ट हैंड साइड है उधर साडे कोल 1 नहीं सी। सो इधर लैफ्ट हैंड साइड 1 सी, राइट हैंड साइड 3 सी। सो लैफ्ट हैंड साइड भी की करांगे, इनू 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। सो बोथ साइड्स जिहड़े एटम्स ने वो इक्वल हो गए ने, परमाणु जिहड़े दोवां पासे बराबर हन। सो इत्थे जिहड़ा है गुणांक वो भी 3 कर दिता। ठीक है, इधर हुण 3 आयरन ने, इधर भी 3 आयरन ने। अगेन आपां चेक कर लेने एक बार, 4 2s are 8 हाइड्रोजन, 4 2s are 8 हाइड्रोजन, बोथ साइड्स हाइड्रोजन्स आर इक्वल। नेक्स्ट 4 ऑक्सीजन्स, 4 ऑक्सीजन्स। सो नाउ दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण है साडी। सो असीं स्क्वायर बॉक्सेस जिहड़े आ हटा लैने आ ते इनू इक्वेशन नू फुल फ्लैज्ड लिख दिंने आ। ठीक है, सो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। बट नाउ एक चीज इत्थे कमी है, दैट इज दी फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्थावां जिहड़ियां असीं ओह मैंशन नहीं कीतियां होईयां। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ। ਵਾਈ ਸੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ, ਦੈਨ ਤੀਸਰਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ 3 ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ठीक है, सो दिस इज दी हिट एंड ट्रायल मैथड। ये हिट एंड ट्रायल मैथड है। ठीक है, नैक्सट साडा जिहड़ा मैं हुणी गल कीती सी राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट।
दैट इज भौतिक अवस्थावां दे संकेत लिखना। सो मैं वो भी राइट किए हुए ने। साडे कोल है जिहड़ा आयरन है, लोहा है, वो सॉलिड फॉर्म च सी ते इत्थे जिहड़ा वाटर है वो गैशियस फॉर्म दे विच सी। इहदा मतलब आयरन दी जिहड़ी आ वो स्टीम दे नाल, ठीक है, दिस इज स्टीम, जिन्हों असीं पंजाबी च कह रहे ने भाफ, कि जिहड़ा आयरन आ ओदी भाफ दे नाल रिएक्शन हुई है, स्टीम दे नाल रिएक्शन हुई है, ठीक है। दैन साडे कोल इधर आ गया सी फेरस फेरिक ऑक्साइड जां फिर आयरन ऑक्साइड जां मैग्नेटाइट, विच इज अगेन अ सॉलिड सबसटेंस, ठीक है, जिहड़ा कि एक ठोस जिहड़ा चीज है, ठोस पदार्थ है। नैक्सट आ गया साडे कोल जी इधर जिहड़ी हाइड्रोजन गैस सी, विच इज गैस गैशियस इन नेचर, सो असी जिहड़ी ओनू गैस दे नाल डिनोट कर दिता। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन विद द फिजिकल स्टेट्स, जिहदे विच आपां भौतिक अवस्थावां भी नाल दित्तियां होईयां ने। सो दिस इज आवर फुल फ्लैज्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। नैक्सट है जी मैं एक होर उदाहरण लई हुई है जिहड़ी विच इज वेरी ईजी। आपां पहलां थोड़ी जी डिफिकल्ट जिहड़ी सी रिएक्शन ओनू बैलेंस करके हटे हां। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी ईजी वन, ठीक है, जिहड़ी असीं मैं पिछले जदों लई सी इहदी एक्टिविटी उत्थे मैं बैलेंस्ड लिखी हुई सी। नैक्सट ये किवें बैलेंस करना है, सेम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एज यू नो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड। अगेन असीं इहनूं स्क्वेयर ब्रैकेट्स दे विच लिख लिया, ठीक है। सो इत्थे मैं ऑक्सीजन बैलेंस कर दी, इधर 2 ऑक्सीजन सी, इधर मैं की किता 2 जिहड़ा गुणांक इन्हां दे अगे लगा दिता, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ऑक्सीजन ਤਾਂ हो जाते हैं, बट वो 2 ਜਿਹੜਾ मैग्नीशियम ਦੇ ਨਾਲ भी मल्टीप्लाई गुणा हो रहा। सो मैग्नीशियम ਦੇ भी ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ एटम्स ने वो 2 हो जाते हैं, बट लैफ्ट हैंड साइड ਤੇ मैग्नीशियम इज 1, ਉਹਦਾ एक ही एटम है। सो नैक्सट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ मैं मैग्नीशियम ਨੂੰ बैलेंस कर ਦਿੰਨੀ ਆ, मैग्नीशियम ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ लगा ਦਿੰਨੀ ਆ, 2 ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਂਕ भी 2 आ ਜਾਂਦਾ है। सो इस साइड लैफ्ट हैंड साइड भी मैग्नीशियम ਦੇ किन्ने हो गए एटम्स 2, ਤੇ राइट हैंड साइड भी मैग्नीशियम ਦੇ 2 एटम्स। ऑक्सीजन दे लैफ्ट हैंड साइड ते भी 2 एटम्स एंड राइट हैंड साइड ते भी ऑक्सीजन दे 2 एटम्स। सो दिस इज अगेन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केयर्स तो इलावा उसनू सिंपल फॉर्म च लिख लैने आ। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की बनता ऑलवेज मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी चीज कदे भी ऑक्सीजन दे नाल किरिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, चाहे वो आयरन होवे दैन आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, जिवें पिछली रिएक्शन दे विच जिहड़ा वो बनिया सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाने आपां। सो दीज आर दी क्वेश्चंस ऑन द पेज नंबर 6, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन नू हवा विच जलाउण तो पहला साफ क्यों करना चाहिए है। इसका जिहड़ा आंसर है मैं अपनी फर्स्ट वीडियो दे विच दिता भी सी कि जिहड़ा मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मैटल है, एक क्रियाशील धात है। ये हवा दे विच मौजूद ऑक्सीजन दे नाल क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दी लेयर बना दिंदा है, ते वो लेयर जिहड़ी आ जलन दे विच रुकावट पांदी है। इसलिए कदे भी मैग्नीशियम रिबन नू जलाउण तो पहला सैंड पेपर यानी कि रेगमार दे नाल रगड़ के साफ कर लेना चाहिए है, जिस दे नाल वो चमकन भी लग जाती है ते उसनू जलाउणा भी आसान हो जाता है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी, जिसनू तुसी अपनी ईजी लैंग्वेज दे विच लिख सकते हो। Now the second is write the balanced equation for the following chemical reactions. Our first reaction is hydrogen plus chlorine is equals to hydrogen chloride. So इहदा जिहड़ा आंसर है जी वो मैं लिखा होया है here, that is hydrogen plus chlorine, both are gases, ठीक है, is equals to hydrogen chloride. So H2Cl2, ठीक है, नेचर विच इसी फॉर्म दे विच हुंदे ने। सो बैलेंस करन दे लई इन्हां दे अगे भी HCl दे अगे भी 2 आ गया। सो दिस इज वेरी इजी, दिस इज द आंसर, ठीक है। सेकंड सी बेरियम क्लोराइड प्लस एलुमिनियम सल्फेट। पहला तो तुहानू इन्हां दोनों दे फॉर्मूलाज जिहड़े आने चाहिए ने, बेरियम क्लोराइड BaCl प्लस एलुमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 ठीक है, एलुमिनियम सल्फेट दा फॉर्मूला, बिकॉज एलुमिनियम की जिहड़ी वैलेंसी है वो 3 हुंदी है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो इस दे विच जिहड़ा है सल्फेट वो बेरियम की साइड चला जाएगा और क्लोरीन जिहड़ा है वो एलुमिनियम के नाल चला जाएगा। असीं नैक्सट वीडियो दे विच टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस जिहड़ा है वो स्टडी करांगे, जिस दे विच तुहानूं पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और कंबीनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शंस ये सारियां की हुंदियां ने, ठीक है। सो
आंसर इज दिस बेरियम सल्फेट प्लस एलुमीनियम क्लोराइड। ठीक है, इनू बैलेंस करना वेरी ईजी, जिवें मैं दस्सिया, सो मैं इत्थे बैलेंस करके लिखिया भी होया, यू कैन चेक। नेक्स्ट इज सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जेड़ा भी जेड़ा आंसर है उत्थे मैं लिखिया होया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जी, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स। ठीक है, स्टेट सिंबल्स भी लिखने ने, जिवें कि ये एक्वस है, मतलब कि इसका पानी दे विच घोल है, ये भी एक्वस है, सोडियम सल्फेट दा भी पानी दे विच घोल है, बेरियम सल्फेट जेड़ा सॉलिड है, एंड NaCl इट इज अगेन एक्वस। ठीक है, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड जेड़ा सी वो सी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों दी रिएक्शन सी जिहदे विच NaCl प्लस वाटर। ठीक है, एक बेस है एक एसिड है, दोनों मिलके हमेशा जड़ा सॉल्ट एंड वाटर यानी लूण अते पानी बनाते हैं, एक खार है ते एक तेजाब है। ठीक है, उदासीनीकरण की क्रिया जी हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टॉपिक। ठीक है, ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। आई होप यू कैन सॉल्व ऑल दीज इक्वेशंस और यू कैन राइट ऑल दीज इक्वेशंस। ठीक है, सो थैंक यू।